Welcome to all the BSc 5th semester student in my class. Today we will read about the trypanosoma of your paper Applied Zoology. It is the first unit. And first of all, what is a trypanosoma? Trypanosoma is the unicellular endoparasite protozoan. It is pathogenic for the man. Of all the species of the trypanosoma, only 3 species are pathogenic in man, like Trypanosoma gambiense, Trypanosoma rhodesiense, and Trypanosoma cruzi. Live as a parasite in the human blood and cause a deadly disease known as sleeping sickness in Africa. Okay. Trypanosoma gambiense and cruzi are the parasite of man blood, whereas cruzi are parasite in the children in South America. Okay, you can see in the picture there is a trypanosoma. This is a blood film, and RBCs are seen, and the spindle shaped, elongated shape are trypanosoma. Okay, in the next slide, trypanosoma are having a diazentic life cycle. Diazentic life cycle, this is an infected person. And here is a trypanosoma, and this is a secondary host, CC fly, Glossina palpalis. Trypanosoma as a diazentic life cycle means trypanosoma is completed their life cycle in 2 hosts, primary host man and secondary host invertebrate host is CC fly, blood sucking fly, CC fly, known as Glossina palpalis. Okay, now the systematic position or classification of trypanosoma. The phylum Protozoa, subphylum Sarcomastigophora, class Zoomastigophora, order Chiantoplastida, and genus Trypanosoma, species Gambiense. हम बेसिकली 2 के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस और रोडिसेंस, क्योंकि ये दोनों ही मैन के जो है पैरासाइट हैं, ब्लड के पैरासाइट हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं मैन में अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस. ओके, क्रूजी जो है वो चाजाज डिजीज़ कॉज करता है चिल्ड्रंस में. नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन. द डिफरेंट स्पीसीज आर ट्रिपैनोसोमा आर रिपोर्टेड फ्रॉम सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका, नाइजीरिया एंड सेंट्रल अमेरिका. Trypanosoma gambiense or rhodesiense live as a parasite in our blood, lymph node, spleen or cerebrospinal fluid of the man, and live in the intestine of blood-sucking fly, CC fly. Now the structure in next slide. Here is the structure. This is the structure of CC fly. Look at the screen. There is a CC fly. It is a secondary host. In case of trypanosoma, it is an intermediate host, and also it is known as a vector to spread the disease. Okay, this is a Trypanosoma gambiense. Human blood film show the various form of trypanosoma in the blood. Okay, now the structure of trypanosoma is a spinal shaped, sickle shaped, elongated structure. Basically trypanosoma, this is the structure of trypanosoma. Trypanosoma outer covering is a pellicle.
and single free flagellum attached with the flagellum attached with the undulating membrane. A single nucleus, large nucleus. Cytoplasm is divided into the two parts, ectoplasm and endoplasm. And some granules are also present in the endoplasm. This is a reserve food granules. Now in the next structure, there is a attached flagellum with the undulating membrane. Undulating membrane का क्या रोल होता है? It is help in the locomotion. ये लोकोमोशन में हेल्प करता है ताकि ट्रिपैनोसोमा हमारे ब्लड में, लिम्फ में ईजिली सर्कुलेट कर सके. Now in the posterior region, this is a blepharoblast. Blepharoblast, this one, and at the posterior end, this is a kinetoplast. Kinetoplast. Blepharoblast is also known as basal granules, and kinetoplast are mainly help in the locomotion. It is a kinetoplast is a basically self-duplicating body and help in the locomotion. Okay, this is a structure of trypanosoma. Trypanosoma बेसिकली आपका स्पाइंडल शेप्ड सिकल शेप्ड जो है स्ट्रक्चर है, सिकल शेप्ड स्ट्रक्चर, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, और ये आपका जैसे अदर प्रोटोजोन्स हैं वैसे ही जो है ये भी है. इसके बाद ट्रिपैनोसोमा. नाउ द पॉलीमार्फिक फॉर्म ऑफ द ट्रिपैनोसोमा. ट्रिपैनोसोमा में एक से ज़्यादा फॉर्म होते हैं. पॉलीमॉर्फिक मीन्स, पॉली मीन्स मोर देन वन, मॉर्फ मतलब स्ट्रक्चर. ट्रिपैनोसोमा में जो है एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर होते हैं, इसीलिए उसके जो है वो पॉलीमॉर्फिक होता है. लुक एट द इन द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ इन द ट्रिपैनोसोमा, दिस इज़ अ four structures in the trypanosoma. Polymorphic form of the trypanosoma. There is a four form of trypanosoma. First is a leishmanial form. Second is a leptomonad form. Third is a chytridial form, and last one is a trypanosoma form. In this diagram, there is a four form of trypanosoma on the basis of position of kinetoplast and blepharoblast. Blepharoblast और kinetoplast की पोजीशन पर जो है ये इसके फॉर्म डिसाइड होते हैं. ओके, अब देखिए, पहले आपने देखा था प्रीवियस स्लाइड में जो है kinetoplast और जो है ब्लेफेरोब्लास्ट कहाँ पर है? ट्रिपैनोसोमा के पोस्टीरियर एंड पे है, यहाँ पर. ठीक है. इन द नेक्स्ट स्लाइड वी कैन सी द चेंज द पोजीशन ऑफ ब्लेफेरोब्लास्ट एंड kinetoplast. फर्स्ट फॉर्म इज अ leishmanial form. Leishmanial form, the rounded body, it is become in rounded form, and the position of kinetoplast is just front of the nucleus. Just front of the nucleus. This is known as, there is no any flagella, free flagella. It is a leishmanial form. In the second form, the kinetoplast or blepharoblast, the position is the blepharoblast is at the anterior end of the body. ये आपके एंटीरियर एंड पे है ब्लेफेरोब्लास्ट की पोजीशन, और फ्री फ्लैजला है. नाउ इसको इस स्टेज को क्या बोलते हैं? लेप्टोमोनाड फॉर्म. नाउ इन द थर्ड स्टेज इज़ अ क्रिथिडियल फॉर्म. क्रिथिडियल फॉर्म में जो है, लुक एट द स्क्रीन, द ब्लेफेरोब्लास्ट और kinetoplast position is just above the nucleus. It is a short and stumpy form of the trypanosoma. It is known as critheidal trypanosoma. Now the last is trypanosoma form. Trypanosoma form में undulating membrane दिख रहा है आपको ये अच्छे से, और
जो आपने पहले प्रीवियस स्ट्रक्चर पढ़ा था वो ट्रिपेनोसोमा ही था, तो उसमें आपका जो ब्लेफेरोब्लास्ट है इट इज़ एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी, पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। ओके, तो आपका जो है 4 फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं ट्रिपेनोसोमा में। ये चारों फॉर्म जो है लाइफ स्टेजेस में आते हैं, और ये जो है ट्रिपेनोसोमा अपने आप को डिफरेंट फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। तो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स हैं, दीज आर द पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स। फर्स्ट इज़ अ लिस्टमैनियल फॉर्म, सेकेंड इज़ द लेप्टोमोनाड फॉर्म, थर्ड इज़ द ग्रेवियल फॉर्म, एंड लास्ट इज़ अ ट्रिपेनोसोमा। All these forms are on the basis of the position of cantoplast and blepharoblast. Okay, now the physiology of trypanosoma. Physiology of trypanosoma, basically nutrition is saprozoic. Saprozoic means कि trypanosoma gambians feed by osmotrophy on the blood and tissues fluid ऑफ इट्स होस्ट। वो होस्ट के ब्लड से, टिश्यू फ्लूइड से अपना न्यूट्रिशन लेता है। इट डाइजेस्ट द शुगर बाय द एंजाइमेटिक एक्शन। ओके, रेस्पिरेशन इज़ बेसिकली एनारोबिक, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर है तो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, इसके बाद एक्सक्रीशन थ्रू इट्स पेल्किल और जनरल बॉडी सरफेस। ओके, नाउ द रिप्रोडक्शन, trypanosoma gambians produces asexually by the longitudinal band diffusion। trypanosoma जो है asexually band diffusion के थ्रू जो है रिप्रोड्यूस करता है, and sexual reproduction is not known in this species। sexual reproduction is not known in this species, so only trypanosoma gambians reproduce asexually by the band diffusion, longitudinal band diffusion। Now the life cycle of trypanosoma. This is a life cycle of trypanosoma. Trypanosoma, their life cycle is completed within 2 hosts, primary host man and secondary host is a invertebrate host, द सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई क्या है? एक ये ब्लड सकिंग फ्लाई है, इंसेक्ट है, जैसे कि मॉस्कीटो होता है। अब व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल? लाइफ साइकिल क्या है यहाँ देखिए। लाइफ साइकिल में सबसे पहले अगर जो है वी विल सी फर्स्ट साइकिल इन द मैन। सबसे पहली बात ये कि अगर कोई इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई किसी मैन को बाइट करता है, तो ये जो मेटासाइक्लिक फॉर्म है, दिस वन मेटासाइक्लिक फॉर्म इज़ अ इन्फेक्टिव स्टेज फॉर द मैन। ये मेटासाइक्लिक फॉर्म सीसी फ्लाई के सिलेवरी ग्लैंड में होते हैं। जब कोई सीसी फ्लाई जिसकी सिलेवरी ग्लैंड में मेटासाइक्लिक फॉर्म है, वो अगर किसी फ्रेश मैन को बाइट करते हैं, तो जब बाइट करेंगे ब्लड सक करने के लिए, तो वो एक ड्रॉप अपना सलाइवा वहाँ पे पर्सिंग एरिया पे जो है गिरा देते हैं, ताकि जो जब वो ब्लड सक करें तो ब्लड जो है क्लॉट ना हो ड्यूरिंग द सकिंग, क्योंकि जब ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो वो सक नहीं गिरा पाएंगे तो फ्रिक्वेंटली। इसीलिए वो जब एक ड्रॉप सलाइवा गिराएंगे तो सलाइवा में बहुत सारे जो है आपके मेटासाइक्लिक जो है ये आपके जो है इन्फेक्टेड जो पर्सन है, मैन है, उनके ब्लड में पहुंच जाएगा ड्यूरिंग द सकिंग। तो जैसे ही मेटासाइक्लिक फॉर्म ब्लड में पहुंचता है, ब्लड में यहाँ पे ये पहुंच रहा है, ब्लड में पहुंचने के बाद इट डेवलप इनटू द लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म। इट इज़ डेवलप इनटू द लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म एंड in the blood, after entering the blood of human, it again divided by the longitudinal binary fission। ठीक है, ये फिर डिवाइड करना शुरू कर देते हैं एंड मल्टीपल नंबर्स में ये बढ़ते जाते हैं। उसके बाद इन द नेक्स्ट स्लाइड इट इज़ प्रोड्यूस इन द इंटरमीडिएट फॉर्म एंड देन इट इज़ डेवलप इनटू द शॉर्ट एंड स्टम्पी फॉर्म। Now
दीज शॉर्ट एंड स्टम्पी फॉर्म आर सर्कुलेट इन आवर ब्लड में वो ये फॉर्म सर्कुलेट करता है। उसके बाद एट दिस टाइम कोई भी सीसी फ्लाई अगर इस इन्फेक्टेड मैन को अगर बाइट करते हैं तो ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म ये चले जाते हैं किसमें, इनवर्टिब्रेट होस्ट के गट में, इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में चले जाते हैं और जहाँ पे जाके ये जो है डेवलप हो जाते हैं इन द लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में, ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में डेवलप कर गए एंड अगेन स्टार्ट टू मल्टीप्लाइज इन द मोर नंबर्स। दीज आर द अगेन डिवाइड बाय द बाइनरी फिजन। आफ्टर द मल्टीप्लाइज they are enter in the salivary gland of सीसी फ्लाई के salivary gland में चले जाते हैं। देखिए पहले जब जो सीसी फ्लाई है वो जब ब्लड सक करेगा तो वो कहाँ जाएगा, वो सीधे गट में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है ये डेवलप कर जाता है लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में और फिर यहाँ पे ये डिवाइड करते हैं बाइनरी फिजन के थ्रू। इसके बाद जब ये नंबर से बढ़ जाते हैं देन एंटर इनटू द सेलेवरी ग्लैंड ऑफ सीसी फ्लाई के सेलेवरी ग्लैंड में चले जाते हैं एंड फ्रॉम हियर यहाँ पे इट इज़ चेंज इनटू द डिफरेंट फॉर्म। दिस इज़ अ क्लिथीडियल फॉर्म। लुक एट द स्क्रीन, you can see in the diagram the position of blepharoblast are just above the nucleus. This one, position of blepharoblast or kinetoplast just above the nucleus, and it is a short and stumpy form. This is known as clitheridial form. And again clitheridial form are again divide in the salivary gland and produce the metacyclic form. This is the infective stage for the man. अब ये सिलेवरी ग्लैंड में रहते हैं। जब ये सीसी फ्लाई किसी मैन को बाइट करते हैं तो दीज मेटासाइक्लिक फॉर्म आर एंटर इन द ह्यूमन ब्लड। ओके, तो ये लाइफ साइकिल थी। लाइफ साइकिल में जो है आपको यही देखना है कि जब कोई इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई जिसकी सिलेवरी ग्लैंड में मेटासाइक्लिक फॉर्म है अगर वो बाइट करता है किसी मैन को तो ये जो है मेटासाइक्लिक फॉर्म जो है ये आपके पहुंच जाएंगे मैन के ब्लड में। ठीक है, मैन के ब्लड में पहुंचने के बाद ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है, ये इट डेवलप इनटू द लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म एंड अगेन डिवाइड, देन चेंज इनटू द इंटरमीडिएट फॉर्म and after that become develop into the short and stumpy form, and this stages are circulate in our blood. At this time when any CC fly are bite then they are enter into the intestine of fly के intestine में पहुँच गए and from there they are again develop into the long cylinder form and multiplies. फिर मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ये पहुंच जाएंगे सिलेवरी ग्लैंड में एंड यहाँ पर जो है ये अपने फॉर्म को चेंज करते हैं। दे आर डेवलप इनटू द डिफरेंट फॉर्म विच इज़ अ क्लिथरिडियल फॉर्म। पोजीशन देखिए कैंटोप्लास्ट के ब्लेफारोब्लास्ट की एंड अगेन ये डिवाइड करेंगे। ठीक है, नंबर्स में इंक्रीज़ करेंगे और सिलेवरी ग्लैंड में ये स्टे करेंगे। ठीक है, और अगेन जब ये आपका सीसी फ्लाई जब किसी मैन को बाइट करेगा तो ये जो है ब्लड सकिंग के समय ये एक ड्रॉप पर्सिंग एरिया पे जो भी ब्लड सकिंग इंसेक्ट होते हैं वो एक ड्रॉप अपना सलाइवा जो है पर्सिंग एरिया पे गिराते हैं ताकि वो ब्लड को सक कर सके। क्योंकि हमें चोट लगती है तो ब्लड थोड़ी देर बाद क्लॉट हो जाता है ना, तो ब्लड क्लॉट ना हो वो इसके लिए करते हैं मॉस्किटो या फिर सीसी फ्लाई या जितने भी ब्लड सकिंग इंसेक्ट हैं वो पर्सिंग एरिया पे जब उन्हें प्रोबोसिस वो पर्स करते हैं स्किन में हमारे तो वहाँ पे एक ड्रॉप सलाइवा गिरा देते हैं और सलाइवा गिराने के बाद वो ब्लड को फ्रिक्वेंटली सक करते हैं। तो उसी सलाइवा के थ्रू ये मेटासाइक्लिक फॉर्म, दिस इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर द मैन, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंटर इनटू द ह्यूमन ब्लड। तो ये लाइफ साइकिल थी। इसके बाद इन द नेक्स्ट स्लाइड there is a transmission. Transmission are basically two types. First is a mechanical or direct transmission and second is a cyclic transmission. Mechanical transmission
मैकेनिकल ट्रांसमिशन आर व्हेन अ सीसी फ्लाई, मेनली जो कैरियर है, कैरियर फ्लाई बाइट अ मैन infected with the trypanosoma. Some trypanosoma stick to produce of fly, and when the fly bites another man, the trypanosoma are introduced into his blood. ठीक है, it within the 24 hours. दैट मीन्स कि मैकेनिकल या डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जब कोई जो फ्लाई है वो जब किसी जो है मैन को बाइट करती है जो कि इन्फेक्टेड है ट्रिपैनोसोमा से, तो जब वो बाइट करते हैं तो ब्लड सक करेंगे तो उनके ब्लड में ऑलरेडी ट्रिपैनोसोमा है, तो ट्रिपैनोसोमा उनके कुछ प्रोबोसिस में भी स्टिक हो जाता है। और जब वही सीसी फ्लाई जब किसी और को बाइट करती है मैन को, तो जो प्रोबोसिस में जो स्टिक हुआ है ट्रिपैनोसोमा वो दूसरे मैन में भी चला जाता है, उनके ब्लड में एंटर कर जाता है। तो दैट इज़ अ मैकेनिकल और डायरेक्ट ट्रांसमिशन। सेकेंड है आपका है साइक्लिक ट्रांसमिशन। साइक्लिक ट्रांसमिशन में जो है, जो हम साइकिल पढ़ रहे हैं अभी, जो मैंने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा है लाइफ साइकिल, उसके थ्रू जो आपका ट्रांसमिशन हो रहा है वो आपका क्या है, साइक्लिक ट्रांसमिशन। सम एनिमल्स आर ऑल्सो रिजर्वायर फॉर द ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा के लिए कुछ एनिमल्स क्या हैं, वो रिजर्वायर हैं। जैसे कि आपका ट्रिपैनोसोमा जो आपका है वो बहुत सारे एनिमल्स में बिना हार्म किए, बिना उनको इन्फेक्ट किए जो है एज अ जो है रिजर्वायर की तरह से वो उनकी बॉडी में रहता है। जैसे आपका वाइल्ड एंटीलोप, पिग, बफेलोज, ये सब जो है क्या है, इट इज़ एक्ट एज अ रिजर्वायर होस्ट फॉर द ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, एंड दिस इज स्प्रेड बाय द वैक्टर्स आर इंटरमीडिएट होस्ट। ये आपका फिर जो है जो इंटरमीडिएट होस्ट है, जो ब्लड सके इंसेक्ट है, उनके थ्रू ये आपके ट्रांसमिट होंगे। नाउ द सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होता है, सिम्टम्स में जब स्लीपिंग सिकनेस होगा, स्लीपिंग सिकनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लीपिंग सिकनेस है क्या, स्लीपिंग सिकनेस आपका तब कॉज होता है जब ट्रिपैनोसोमा जो है एक बार आपके ब्रेन में पहुंच जाता है। सबसे पहले वो ब्लड में ही रहता है, ब्लड में, लिम्फ में रहता है। जब वो ब्लड के थ्रू ब्रेन में पहुंच जाता है तो ब्रेन में पहुंचने के बाद वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जब एक बार पहुंच जाएगा तो वो अपने नर्वस टिश्यू को, नर्वस सिस्टम को डैमेज करना शुरू करता है। और इससे क्या होता है, पेशेंट आर अंडरगोज इन द अनकॉन्शियसनेस स्टेज, इन द लिथार्जियस कंडीशन। वो पेशेंट जो होता है वो लिथार्जियस हो जाता है, अनकॉन्शियसनेस स्टेज में चला जाता है, और इसी को बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। जब वो ब्लड में रहता है, इट कॉज आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ द इन्फेक्शन, इट कॉज द फीवर, हेडेक एंड वीकनेस, लॉस ऑफ वेट एंड ऑल्सो कॉज द एनीमिया। ये सिम्टम्स होते हैं। और एक बार जब अगर वो पहुंच गया हमारे ब्रेन में इन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इट डैमेज टू द नर्वस सिस्टम, और जब नर्वस सिस्टम को ये डैमेज करेगा तब ये कॉज करेगा स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस में क्या होगा, पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस स्टेज में जाएगा, धीरे धीरे फिर वो कोमा में चला जाएगा, एंड कोमा के बाद लास्टली जो है फाइनली रिजल्टिंग इनटू द डेथ। तो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज़ स्लीपिंग सिकनेस, क्योंकि इसको हम तभी तक क्योर कर सकते हैं जब तक कि ये हमारे ब्लड में है। एक बार ये ब्रेन में पहुंच जाता है तो इट इज़ नॉट क्योरेबल, वी कैन नॉट क्योर दिस। तो यहाँ पे जो है मेनली स्लीपिंग सिकनेस तब कॉज होता है जब जो है जो ट्रिपैनोसोमा है वो ब्लड के थ्रू हमारे ब्रेन में पहुँचता है, यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। ठीक है, तो जो डिज़ीज़ है वो आपकी स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं, और इस डिजीज़ को क्या बोलते हैं, ट्रिपैनोसोमियासिस। ट्रिपैनोसोमियासिस डिजीज़ कॉज करते हैं, ट्रिपैनोसोमियासिस डिजीज़ कॉज करते हैं। ट्रिपैनोसोमा रोडिसेंस जो स्पीसीज़ है उससे आपका रोडिसेंस स्लीपिंग सिकनेस कॉज होता है, ये रोडिसेंस स्लीपिंग सिकनेस है। ठीक है, और उसके बाद जो है जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है उससे क्या क्या कॉज होता है, गैम्बियन स्लीपिंग सिकनेस कॉज होता है। ठीक है, नेक्स्ट डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में द डायग्नोसिस इज कन्फर्म बाय द एग्जामिन ऑफ फ्रेश आर स्टेन्ड
ब्लड, ठीक है, एंड ऑल्सो बाय द एग्जामिन बाय द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भी हम इसको करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट थेरेपी, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इन द नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी द ट्रीटमेंट और थेरेपी। ट्रीटमेंट बेसिकली the arsenic and antimony compounds are were until recently the drugs for the treatment of trypanosomiasis, but nowadays there are two important drugs. First is a Bayer 205 and second is a pentamidine. Pentamidine is also known as Lomidine. Two important drugs are widely used for the treatment and prophylaxis of human infection. Mainly दो ड्रग को यूज़ करते हैं इस समय, एक है Bayer 205 और दूसरा है Pentamidine. Pentamidine also known as Lomidine and Bayer 205 is also known as Antipyrrole, ठीक है, एंट्रीपोल बोलते हैं। तो ये दो ड्रग हैं जिनको हम यूज़ करते हैं इन द केस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ ट्रिपैनोसोमा। ओके, नाउ द प्रिवेंशन is very important. Prevention means prophylaxis जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन द क्योर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिकॉशन में हम बाय इरेडिकेटिंग द वेक्टर, जो सेकेंडरी होस्ट है उसको हम इरेडिकेट करें, उसको डिस्ट्रॉय करें, क्योंकि उसी की बाइटिंग की वजह से हो रहा है। जैसे कि मॉस्कीटो, प्लाज्मोडियम के केस में, मलेरिया के केस में क्या करते हैं, मॉस्कीटो को, सेकेंडरी होस्ट को हम जो है इरेडिकेट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, ताकि जो है मॉस्कीटो जो है आपका डेवलप ही ज़्यादा ना हो। और दूसरा प्रोटेक्शन अगेंस्ट द बाइटिंग, अब प्रोटेक्शन करते हैं अगेंस्ट द बाइटिंग। अगर वो बाइट ही नहीं करता है तो हमें डिजीज़ नहीं होगा, स्प्रेड नहीं होगा। ओके, दूसरा जो है ऑल्सो केयर शुड बी टेकन टू कीप द रिजर्वायर होस्ट फ्री फ्रॉम इट्स इन्फेक्शन। ओके, एंड लास्ट इज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन शुड बी टेकन फ्रिक्वेंटली एंड पीरियडिकली, ठीक है, विच ऑल्सो हेल्प टू ग्रेट एक्सटेंट फ्रॉम इट्स इन्फेक्शन। तो ये आपका प्रिवेंशन हो गया। पहला तो आपका बाय इरेडिकेटिंग द सेकेंडरी होस्ट यानी कि वेक्टर सीसी फ्लाई, दूसरा प्रोटेक्शन अगेंस्ट द बाइटिंग, दूसरा और तीसरा जो है प्रिवेंटिव मेडिसिन शुड बी टेकन। Okay, now here is a chart of trypanosoma, some trypanosoma species, some pathogenic species. Trypanosoma मैंने पहले ही बताया कि ट्रिपैनोसोमा जो है आपका केवल जो जितने भी स्पीसीज़ हैं उसमें केवल 3 स्पीसीज़ आपके जो है वो इम्पॉर्टेंट है और वो मैन के लिए पैथोजेनिक है। फर्स्ट आपका जो है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा रोडिसियंस एंड ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, ये तीनों ब्लड के पैरासाइट हैं, ठीक है। और बाकी जो है आपके हैं ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी, ट्रिपैनोसोमा एवेंसी, ट्रिपैनोसोमा इक्विनम, ट्रिपैनोसोमा इक्विपर्डम, ट्रिपैनोसोमा हिपिकम, ट्रिपैनोसोमा वाइवेक्स एंड ट्रिपैनोसोमा सीमियाई। All these are parasite of other vertebrate hosts like the horse, donkeys, camels, cattle, elephants. इन सब में disease cause करते हैं, but only the three are the important and Trypanosoma gambians, Trypanosoma rhodesians and Trypanosoma cruzi। तो इन्हीं को पढ़ना है हमें। और आज आपने जो Trypanosoma gambians पढ़ा है वो सेम आपकी लाइफ साइकिल रोडिसियंस की भी होती है, ठीक है। क्रूजी मैन में, चिल्ड्रन में डिजीज़ कॉज करता है, चाजाज डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है। और जो है ये तीनों क्या हैं, ब्लड के पैरासाइट हैं, ठीक है। बस आपको ये ध्यान देना है ट्रिपैनोसोमा क्रूजी में जो आपका दूसरा ब्लड सकिंग इंसेक्ट है सेकेंडरी होस्ट, वो है ट्राइटोमा बग, ठीक है। ओके, नाउ द ये आपका ट्रिपैनोसोमा इज़ फिनिश्ड। इन द नेक्स्ट स्लाइड we will in the next class we will read about the plasmodium. Thank you.